حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے پولیس کی ظلم و ستم کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، کس طرح بی جے پی مارکیٹنگ کر رہی ہے شمشان میں کچھ کھانے پینے دے کر کے، کرناٹک کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا۔ کمبھ میلے سے مدھیہ پردیش میں جتنے بھی لوٹے 99% لوگوں نے کووڈ پوزیٹیو آنے کی رپورٹ آ رہی ہے۔ تو یو پی کے پنچایت انتخابات میں بی جے پی کو خطرناک جھٹکا لگا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ لیا، تو وہیں پر میکسیکو میں میٹرو ٹرین کی بالائی گزرگاہ بیٹھ جانے سے کئی لوگوں کے ہلاکتوں کی اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میانمار میں بم دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی، اور میں آپ کو حجر اسود کی ایک نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ اندرونی سطح کی جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بارسلونا کا گرجا گھر کس طرح سے روزے داروں کے لیے میزبان بن چکا ہے وہ بھی سامنے رکھتے ہوئے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ ہمارا کام لگاتار جاری ہے مختلف بستیوں میں اور پہاڑی علاقوں میں، غریب، مفلس، لاچار، یتیم، بیوہ لوگوں میں یہ ساری آپ کی امانتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ تصاویر کے حوالے سے آپ اطمینان کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا کام گھر گھر پہنچانے کا بھی جاری ہے، لوگوں کو جمع کر کے مستحقین تک ان تک جو ہے راشن پہنچانے کا کام بھی جاری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی جاری ہیں، یہ آپ کچھ آواز کے ساتھ دعائیں سن لیں، پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ یا اللہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت پر رحم کا، کرم کا، شفقت کا، عافیت کا، خیر کا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، جو وبا کی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالمین انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصاً میرے مولا کریم اے اللہ جو سیدھی بات فاؤنڈیشن مولانا انصار عزیز ندوی صاحب اے اللہ جو ان کی طرف سے اللہ یہ راشن یہاں پہنچا ہوا ہے، غریب عوام کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، میرے مولا کریم اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے مولانا شکیل الرحمن ندوی صاحب جموں والے، اے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اسی طرح جتنے بھی غریب عوام کے اندر جو کام کر رہا ہے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، پوری عالم انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ اسی طریقے سے ہم سب کو غریب عوام کے اندر کام کرنے والا بنا، اے اللہ غریب عوام کے اندر کام کرنے والا بنا، یا رب العالمین اے اللہ چاروں طرف سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شرور سے حفاظت فرما، یا رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ ببرکت مہینہ ہے، اے اللہ اس سخاوت کو قبول فرما۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موت پر بھی، شمشان گھاٹ پر بھی سیاست کرنا نہیں چھوڑتے بی جے پی کے اراکین۔ یہ دراصل کنڑا میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو خلاصہ آپ کو یہ کروں کہ اس میں ایک طرف یڈیورپا کی تصویر ہے، ایک طرف مودی کی ہے، وشوناتھ کی بھی ہے اور یس ملیہ کی بھی ہے۔ دراصل یہ جو انتم سنسکار کووڈ-19 کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں لوگ، تو اسی کو دیکھیے کتنا بڑا بینر لگا کر کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، شمشان دانے کے لیے راستہ دکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماسک پہننے کا اعلان کرتے ہوئے
यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम फ़लाँ की जानिब से किया जा रहा है, फ़लाँ की ज़ेर सदारत किया जा रहा है, ये कहते हुए ये बीजेपी के लीडरान है। मौत पर भी सियासत करना, शमशान घाट पर भी सियासत करना कोई इन लोगों से सीखे तो सीखे। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और तस्वीर में आप लोगों को दिखाऊं। ये टाइम्स नाउ की एक तस्वीर है जो वायरल हो रही है। कोई मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है और दिखाएगा तो भी आप अंदाज़ा लगा लें इस वक्त क्या हालचाल है। मध्य प्रदेश में जो लोग कुंभ मेले में शरीक होकर के वापस लौटे थे, उसमें 99% लोगों को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इस 99% का मतलब ये है कि पूरे के पूरे लोग, जितने भी लोग गए थे वापस लौटे, सब लोगों ने अपने साथ कोरोना ले आए। लेकिन क्या मीडिया ने इस पर कोई डिबेट किया? क्या मीडिया ने इस पर मरकज़ी हुकूमत को, यूपी हुकूमत को, उत्तराखंड की हुकूमत को, दीगर हुकूमतें जो इसकी ज़िम्मेदार थी, जो इंतज़ामिया थे, जो यहाँ अलग अलग तरह की धड़ें थीं जो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, उनको लताड़ा, उनको जो है कटहरे में खड़ा किया? क्या उनसे सवाल किया? कोई भी मीडिया जो है इस पर सवाल करने को तैयार नहीं है। ये रियलिटी है ज़मीनी सतह पर कि कुंभ मेले से बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैला है। आइए नाज़रीन गिरामी, कोविड-19 के इस दौर में जहां हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर पुलिस अपने जुर्म से बाज नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के प्रकरण में, जहां काठाघर नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर लॉकडाउन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने हम लगाते हुए एक मुस्लिम नौजवानों के साथ पुलिस किस तरह से जो है मारपीट कर रही है, किस तरह उसको भगा भगा करके मार रही है, इस वीडियो में आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। बहरहाल मुरादाबाद की पुलिस ने इस वीडियो के हवाले से ट्वीट भी किया है कि जो है इस सिलसिले में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि इल्ज़ाम लगाए कि नौजवान, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पे कई सारे नौजवान जमा हुए हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नौजवान को घेर करके पुलिस मार रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की गुंडागर्दी देख सकते हैं कि किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ अभी भी यहाँ की पुलिस जो है लगातार गुंडागर्दी कर रही है और जुल्म सितम कर रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश हुई है। मगर देखना है कि मुरादाबाद का जो आला हाई अथॉरिटी पुलिस इंतज़ामिया है, वो इस सिलसिले में मज़कूरा पुलिस के हवाले से किस तरह का जो है फ़ैसला लेती है और किस तरह की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के नताइज के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात के नताइज में भी शदीद झटका लगा है। मज़हब के नाम पर सियासत करने वाली भगवा पार्टी को हिंदुओं के कई अहम शहरों यानी अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी तक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन सभी मकामात पर समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। गौरतलब बात यह है कि यूपी के 3 अजला योगी आदित्यनाथ हुकूमत के एजेंडे में शामिल रहे हैं और हुकूमत पिछले 4 सालों में इन अजला के लिए मुतादिद ऐलान करती रही है। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा और काशी में बीजेपी का हार जाना ये जाहिर करता है कि लोग अब फ़िरकावाराना सियासत से उकता चुके हैं और तब्दीली चाहते हैं। जी हाँ, बीजेपी को राम के शहर अयोध्या में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अयोध्या ज़िले में कुल ज़िला पंचायत के अरकान की तादाद 40 है, जिनमें से समाजवादी पार्टी ने 24 नशिस्तों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को यहाँ सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल हुई। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी को यहाँ अपने बागियों की वजह से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि 13 सीटों पर पार्टी कायदीन को टिकट न मिलने पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे थे। हालांकि बीजेपी अयोध्या के हवाले से कई दावा करती रही है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी भी काफ़ी मकबूल है। ताहम अयोध्या में बीजेपी का ऐसे वक्त में हारना जब वहाँ राम मंदिर तामीर हो रहा और बीजेपी उसका सहरा अपने सर पर बांध रही है, आवाम के मिजाज को समझने के लिए काफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी बीजेपी की हालत तशवीशनाक है। एमएलसी इंतखाबात के बाद काशी में ज़िला पंचायत इंतखाबात में भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़िला पंचायत की 40 नशिस्तों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 नशिस्तें ही गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ 14 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया। बीएसपी को यहाँ 5 नशिस्तें हासिल हुई हैं। 2015 में भी बीजेपी को काशी में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी हुकूमत की तश्कील के बाद बीजेपी ने एसपी से ज़िला पंचायत सदर की कुर्सी छीन ली थी। इसी तरह मथुरा का भी यही हाल है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर भी जो है बीजेपी को करारी शिकस्त हुई है। तो इस तरह से बंगाल के बाद यूपी में भी पंचायत इलेक्शन में
बीजेपी को करारा झटका लगने की वजह से इस वक्त पूरे भारत में बीजेपी की गिरती साख को लेकर के बहस मुबाहसे जारी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको अगली ख़बर की जानिब ले चलूँ। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स का बीवी को तलाक देने का ऐलान सामने आने के बाद एक मरतबा फिर बिल गेट्स सुर्खियों में आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा ने ऐलान किया है कि वो तलाक ले रहे हैं। 27 साल बाद उनकी शादी ख़त्म होने वाली है। ये जोड़ा दुनिया की सबसे बड़ी निजी फलाही तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिलकर काम करता रहेगा। इस जोड़े ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए कहा कि अपने फाउंडेशन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे, लेकिन हम बतौर मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगियों के अगले मराहिल में एक साथ तरक्की नहीं कर सकते। तो नाज़रीन गिरामी, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। हर जगह पर जो है आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाइल पैदा होते हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन जोड़ा कहे जाने वाले इन मियाँ बीवी में ही इस वक्त जो है तलाक हो रही है, इसको लेकर कि इस वक्त अलग अलग तबसरे यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में जो है इस वक्त शाये हो रही है। नाज़रीन गिरामी, मेक्सिको मेट्रो ट्रेन की बालाई गुजरगाह बैठ गई, जिसकी वजह से 15 अफराद हलाक हुए और 70 ज़ख्मी होने से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक हुकाम ने कहा कि दारुल-हुकूमत मेक्सिको में तामीर व मरम्मत के दौरान मेट्रो ट्रेन की बालाई गुजरगाह का एक हिस्सा अपने ऊपर मौजूद बोगियों समेत बैठ गया है और ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया। हुकाम ने कहा कि बोगियाँ नीचे से गुजरती गाड़ियों के ऊपर गिरी हैं। हादसे में 15 अफराद हलाक हो चुके और 70 ज़ख्मी हो चुके हैं। मेट्रो ट्रेन की बालाई गुजरगाह नीचे मौजूद सड़क से तकरीबन 5 मीटर बुलंद थी। इतलात के मुताबिक इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई। इमदादी कामों का आगाज़ हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, मेक्सिको से आई हुई ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो चलती ट्रेन चलती गाड़ियों पर गिर गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में अब हालात ठीक नहीं हैं। कहीं झड़पें हैं तो कहीं पर बम धमाके हैं। जी हाँ, म्यांमार के सूबे बागू में एक रुकने पार्लिमान को बम हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं। म्यांमार नाउ नामी वेबसाइट के मुताबिक सूबे बागू के देहात जी ओलाक में गुज़िश्ता रोज़ कौमी जमहूरी पार्टी के रुकने पार्लिमान थेट लाइंग वन के हलके में एक पैकेट में बंद बम धमाके से फट गया था। इस हमले के नतीजे में रुकने पार्लिमान के अलावा 3 पुलिस एहलकार और एक दीगर शख्स हलाक हो गए। बताया गया है कि रुकने पार्लिमान वन माजूल सदर आंग सान सूची और साबिका वज़ीर ख़ारिजा से करीबी ताल्लुक़ रखते थे। दरियासना बागों में पुलिस ने भी फ़ौजी आमिरियत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों में आवाम के साथ सिविल नाफरमानी में हिस्सा लिया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त बर्मा में जो कुछ हालात बने हुए हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर सिचुएशन लगातार ख़राब होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर जारी हो गई और इस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सऊदी हुकूमत ने दरअसल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबे इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। 1000 से ज़ायद तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, हजर अस्वद की अक्सबंदी 49,000 मेगापिक्सल की हद तक बारीक बीन थी। तस्वीर को बनाने में 50 से ज़्यादा घंटे सर्फ हुए। हजर अस्वद खाने काबा के जुनूबी मशरक़ी गोशे में बाहर की तरफ लगा हुआ है। हजर अस्वद से खाने काबा का तवाफ़ शुरू होता है और इसी पर ख़त्म होता है। ये बैज़वी शक्ल का है और उसका रंग सुर्खी माइल सियाह है, जबकि इसका कतर 30 सेंटीमीटर है। फोकस स्टैक पेनोरामा की मदद से मकाम इब्राहीम की तस्वीर भी बनाई गई, जबकि मकाम इब्राहीम की इस कदर शफ़ाफ़ तस्वीरें भी पहली मरतबा सामने आई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तस्वीर आम कर दी गई हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बार्सिलोना का गिरजाघर रोज़ेदारों का मेज़बान बन चुका है। जी हाँ, स्पेन के शहर बार्सिलोना के एक गिरजाघर ने मजहबी रवादारी की मिसाइल कायम करते हुए मुस्लिम अफराद को अपनी महराब और छत के इलाक़े को इस्तेमाल करने का मौका दिया। 50 से 60 के दरमियान मुसलमान बार्सिलोना के सांता आना चर्च के क्लिस्टर्स में पहुंचकर हर शाम इफ्तारी करते हैं और फिर इबादत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसी गिरजाघर में महराबदार छत के नीचे वाले हिस्से को क्लिस्टर्स कहते हैं। इस मकसद के लिए आने वाले मुसलमानों को कोरोना लॉकडाउन ज़वाबित का एहतराम भी करना होता है। इन अफराद में ज़्यादातर मुसलमान वो हैं जो बेरोज़गार हैं।
افطاری کے لیے مسلمان خاندانوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر گھر کا پکا ہوا لذیذ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ رواں برس یورپ کے مختلف ممالک کے عوام کے ساتھ ساتھ مسلمان آبادی کو بھی گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ سخت لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ ایسے میں مسلمان اقلیت رمضان میں کورونا لاک ڈاؤن کے ضوابط سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ رمضان میں مسلم خاندانوں دوستوں کے حلقے شام کے وقت روزے کی افطاری ایک ساتھ کرنے کو احسن خیال کرتے ہیں۔ پتھروں سے تعمیر شدہ صدیوں پرانے تاریخی گرجا گھر کی انتظامیہ نے کلیسٹرز کے اندرونی حصے نماز کی ادائیگی کے لیے کھول دیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس گرجا گھر کی جانب سے اس پیشکش کی یورپی مسلم حلقوں نے پرزور الفاظ میں پذیرائی کی ہے۔ گرجا گھر کے سینئر پادری فادر پیوس چانجیس عمومی طور پر مختلف ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا عمل بھی قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ملنے کے بعد سانتانا چرچ کے مرکزی وسیع صحن میں لگے مالٹے کے درختوں کی جھنڈ تلے باقاعدہ اذان بھی دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر اس طرح سے ایک اچھی مثال قائم کرنے پر بارسلونا کا گرجا گھر سرخیوں میں آ چکا ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔